and my viewers. Today I am going to discuss with you this chapter. It's chapter number 9, Bholi. The name of the chapter is Bholi from class 10th English supplementary book Footprints Without Feet. So today I am going to discuss with you this chapter. Now see, the title of the chapter is Bholi, and this Bholi word is in Hindi, is a Hindi word. Okay, ये एक हिंदी का word है भोली. भोली means the simpleton. Simpleton means बहुत सीधा साधा एक इंसान who could be tricked by any other person also, जिसका दूसरे लोग भी बेवकूफ़ बना देते हैं, बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा इंसान. Okay, now this story revolves around a girl whose name is Bholi, means the main character of the story is Bholi herself. उसी के नाम से ही ये चैप्टर का भी नाम, इस कहानी का भी नाम दिया गया है. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर टुडे. सी, from her very childhood, Bholi was neglected at home. Means from her childhood, this is an overview of the chapter. Why did her teacher take special interest in her? Now here we have some questions, and we will get the answers of these questions when we discuss the chapter. Did Bholi measure up to her teacher's expectations? Yes, let us see if Bholi is able to come up to the expectations of her teacher. Let us see. We have some more questions here, like why is Bholi's father worried about her, and for what unusual reason is Bholi sent to school? Yes, students and my viewers, why these questions are given at the outset means just to enhance, just to raise a curiosity among the readers कि क्यों ऐसा होगा. लेट अस सी, जब आप ये क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस का आंसर जानने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप होती है. दैट इज़ वाई दीज क्वेश्चंस आर गिवन एट द beginning. Now see, her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Means the real name of the character is Sulekha. This is the real name. लेकिन बचपन से ही सब उसको भोली कहते थे. The simpleton. I have already discussed the meaning of simpleton. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. Nambardar means an official and government official who collects revenue. Revenue department में एक post होती है. And the name of her father is Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. So when she was just 10 months old, तो वो अपने कॉट से नीचे गिर गई थी एंड एक हेड इंजरी हो गई थी जिसके कारण कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन. एंड दिस वॉज द रीजन वाई शी वॉज कॉल्ड सिंपल्टन, बिकॉज सम पार्ट ऑफ दिस ब्रेन वॉज डैमेज एंड कुछ उसकी ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ पे प्रॉब्लम आ गई थी. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured. Now, disfigured means पूरी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जानी हमेशा के लिए. डिसफिगर होता है ख़राब हो जाना, क्योंकि जब वो 2 साल की थी पहले तो हेड इंजरी हुई, देन एक स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस भी ख़राब हो गई बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. ठीक है, काले काले निशान दाग धब्बे पड़ गए थे. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड 5 years तक she was not able to speak, and when at last she learned to speak, she stammered. Stammered means हकलाना. The other children often made fun of her and mimicked her. Mimic होता है नकल उतारना, उसकी नकल उतारते थे जब वो हकला कर बोलती थी. So as a result she talked very little. So she avoided talking, क्योंकि सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे तो वो avoid करती थी ज़्यादा बोलना. Means she remained quiet. Ramlal had 7 children and 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. Means everything. नंबरदार रामलाल जो था वो अच्छा खाता पीता घर था उनका, 7 उनके बच्चे थे, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. All the children except Bholi were healthy and strong. Yes, except Bholi, all other children were good looking, healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. Yes, sons. पुराने ज़माने की ये बात है.
तो उस समय लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो बेटों को पढ़ने के लिए स्कूल और शहरों में कॉलेजेस में भी भेजा गया, और लड़कियों की जैसे ही वो थोड़ा बड़ी होती थी उनकी शादी कर दी जाती थी। राधा जो सबसे बड़ी थी उसकी शादी हो चुकी थी, एंड द सेकेंड डॉटर मंगला's marriage has also been settled, means she was also married. And when that was done, Ramlal would think of a third child, that is Champa, third daughter. They were all good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. Yes, obviously, अगर लड़कियां सुंदर हैं, देखने में अच्छी हैं, हेल्दी हैं, तो उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी. But Ramlal was worried about Bholi. So here we come to know the answer of that first question which we have read in the beginning, कि भोली के लिए उसका फादर क्यों अपसेट था, बिकॉज भोली वॉज नॉट गुड लुकिंग, वॉज नॉट हेल्दी, वॉज बैकवर्ड चाइल्ड, सो it was not easy for to search to find a bridegroom for Bholi. She had neither good looks nor intelligence. Then see, this is a picture, this is Ramlal, this is Bholi's mother, ये उनकी एक डॉटर है, मे बी चंपा, एंड हियर इज भोली सिटिंग इन द कॉर्नर. सी द अपीयरेंस ऑफ भोली. Really she is looking Bholi, a neglected child. Bholi was 7 years old when Mangala was married. Means Mangala की शादी हुई तो she was 7 years old. The same year a primary schools for girls was opened in their village. The तहसीलदार, ये भी एक पोस्ट है गवर्नमेंट की, साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपन सेरेमनी. तो उसी साल भोली के स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया और उसकी ओपनिंग के लिए कौन आए, वहाँ के तहसीलदार. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. Yes, this was the proposal given by Tehsildar to Ramlal, that you are an official representative here, कि आप एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे हो यहाँ पर, तो आपको लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजेंगे तो बाकी के लोग भी भेजेंगे. That night when Ramlal consulted his wife, she cried. Cried means shouted. Are you crazy? Crazy means पागल हो गए हो, out of sense. If girls go to school, who will marry them? Because at that time this was a notion. ये एक मान्यता थी, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, अगर वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके लिए अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे. So who will marry them? But Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार. लेकिन रामलाल तहसीलदार की बात को डिसोबे तो नहीं कर सकता था. At last his wife said, I will tell you what to do. कह रहे मैं तुम्हें इस दुविधा से निकालती हूँ. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married, because nobody is going to marry Bholi with her ugly face and lack of sense. So let the teachers at the school worry about her, because Bholi was a neglected child at home also. So now see, mother is just putting her own responsibility on the shoulders of teachers. कह रहे भेज दो उसको स्कूल, कम से कम जितनी देर वो स्कूल रहेगी टीचर्स उसके बारे में सोचेंगे, मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. Then here we have some more questions. See, does Bholi enjoy her first day at school, or does she find her teacher different from the people at home? Now let us read the next part and we'll come to know the answers. The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, Come with me, I will take you to school. Bholi was frightened. She did not know. Here is the school, this is a picture, what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. Yes, she knew. अब अगले दिन उसको रामलाल ने कहा, उठो चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके चलूँगा. And Bholi was frightened because उसको तो पता ही नहीं था स्कूल क्या है. And this is the picture of the school where Bholi has to go. And see, बिकॉज शी रिमेंबर्ड कि कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसको भी इसी तरह से घर से निकाल कर बेच दिया गया था. तो वो भी यही सोच रही है दैट शी इज़ नॉट वांटेड, बिकॉज दैट cow was also not wanted in the house anymore. Now Bholi also started thinking like that कि I am also an unwanted creature in this house, कि मुझे भी तो कोई यहाँ पसंद नहीं करता, मुझे अब ये घर से भी निकाल देंगे. No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना. And she just pulled out her hand.
What's the matter with you, fool? Shouted Ramlal. I'm only taking to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today. Or else, what will the teachers and other school girls think of us when they see her? कह रही क्या बात हो गई? You fool, I'm just taking you to school. And then he asked his wife also कि उसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, ठीक है, नहीं तो टीचर्स स्कूल में हमारे बारे में क्या सोचेंगे. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. नए कपड़े तो उसके लिए कभी बनाए नहीं गए. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स. इवन nobody bothered about the washing and caring of her clothes. कभी कभी धुलते थे उसके कपड़े बहुत बहुत दिनों तक. She used to wear the old dirty clothes. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. चंपा की एक पुरानी ड्रेस उसको दी गई जो साफ़ सुथरी थी, धोई गई थी क्योंकि वो श्रिंक हो गई थी. चंपा को अब वो आती नहीं थी. शी वॉज इवन बेड, उसको नहलाया गया. एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर. मैटेड होते हैं उलझे हुए बाल. ओके, मैटेड मीन्स उलझे हुए. एंटैंगल्ड, entangled, this is the word for matted. Entangled here. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than home. तब उसको समझ में आया कि वो एक ऐसी जगह जा रही है जो घर से अच्छी है. तभी तो उसको अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए, उसको नहलाया गया, उसके बाल वाल संवारे गए. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. उसको रामलाल अपने हेडमिस्ट्रेस के पास छोड़ के चले गए स्कूल में. एंड शी, और वो डरी हुई आंखों से. fear-laden eyes means even till now she come to know that school is better place. लेकिन फिर भी असल में स्कूल क्या है, उसके साथ वहाँ क्या होगा, she did not know. There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats. Squatted means sitting on the heels. Heels पे बैठना. Mats पे बैठी हुई थी, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in the corner of one of the classrooms. तो headmistress एक corner में भोली को बिठा के चली गई classrooms की. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. अब भोली को तो पता नहीं था स्कूल क्या है, उसने लड़कियों को देखा लिखते पढ़ते हुए, लेकिन वो खुश थी कि अपनी ही उम्र की बहुत सारी गर्ल्स उसको वहाँ देखने को मिली. एंड शी वॉज होपफुल दैट one of them might become her friend also. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand anything. कुछ बच्चों से वो कह रही थी, but she could not understand. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. Colors को देख के वो बड़ी खुश हुई. Pictures देखी. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. Horse देखा, उसकी पिक्चर देखी, सेम था जैसे तहसीलदार जिस घोड़े पे बैठ के आता था. Goat was black like the goat of their neighbor. बकरी का रंग वैसा ही था, काला जैसा उसकी नेबर के पास है. The parrot was green like parrots she had seen in the mango orchard. आम के बगीचों में उसने बहुत सारे तोते देखे थे, तो वैसे ही तोते का कलर था ग्रीन. And the cow was just like their Lakshmi. और काऊ कैसी थी, बिल्कुल उनकी गाय लक्ष्मी जैसी. तो ये these were the pictures, those pictures were painted on the walls. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side and smiling at her. फिर उसने देखा कि टीचर्स उसके पास खड़ी हैं and she is smiling. What is your name, little one? Now this is the question asked by the teacher. Means the teacher asked Bholi her name. भो भो भो. She could stammer no further than that. भो भो बोल के रुक गई क्योंकि हकलाती थी, बोल नहीं पाती थी. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और नीचे सिर झुका के बैठ गई, रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसको लगा कि बाकी लड़कियां तो उसकी इस स्टैमरिंग को देखकर हंस रही होंगी. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. Means hurried, ran out. But Bholi, scurried means to run out, ran out. But Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered. She kept on sobbing. अभी तक वो बेचारी रो रही थी सिर नीचा करके. Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing. In her life, she had never been called like that. It touched her heart. इतने प्यार से कभी उसको किसी ने आवाज़ नहीं दी थी जितने अच्छे से उसकी टीचर ने उसको बुलाया.
Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Get up, ऐसा नहीं, कमांडिंग नहीं बोला, उसने प्यार से बोला, खड़े हो जाओ बेटा. एंड भोली गॉट अप. नाउ टेल मी योर नेम. अब मुझे अपना नाम बताओ. क्योंकि अब कोई नहीं था सिवाय भोली के और उसके टीचर के. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. बिल्कुल मतलब थोड़ी सी वो हो गई, पसीना आ गया उसको. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्कस हर. दोबारा क्या उसकी जो हकलाने की आदत है वो फिर से उसको मतलब डिस्ग्रेस करेगी. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट. यस, उसने काइंड वुमन, उसकी टीचर के लिए, शी थॉट दैट शी शुड स्पीक. शी वुड नॉट लाफ एट हर. उसको ये विश्वास था कि उसकी टीचर उस पर हंसेंगी नहीं. भो, she began to stammer. Well done, the teacher encouraged him. Come on, now the full name. कह रहे पूरा नाम बोलो. भोली. At last she was able to say it and felt relieved, as if it was a great achievement. लास्ट में अपना नाम बोला और उसको ऐसा लगा जैसे वो उसके लिए एक अचीवमेंट थी. Well done, the teacher patted her affectionately and said, Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. कह रहे इसको निकाल दो अपने मन से, अपने डर को. भोली looked up as if to ask, Really? कहते सच में क्या मैं बोल पाऊंगी अच्छे से? Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? कह रही रोज स्कूल आओगी? भोली nodded, सिर हिलाया. No, say it aloud. कह रहे बोल के बताओ. Yes, and भोली herself was astonished that she had been able to say it. उसने फिर से yes को भी अच्छे से बोल दिया. Did not I tell you? Now take this book. उसको एक बुक दी उसकी टीचर ने. The book was full of nice pictures and pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, cow, just like Lakshmi. And with every picture there was a word in black letters. काले अक्षरों में उस पिक्चर का नाम भी लिखा हुआ था. In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. उसको एक बुक दी. कह रही अब हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जब तुम पढ़ लिख जाओगी इसके बाद इससे भी बड़ी किताब पढ़ोगी और उससे भी बड़ी, तुम पूरी इस विलेज में एक पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी. तब सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम बिल्कुल विदाउट स्टैमरिंग बोल भी पाओगी. तो सुबह जल्दी आना है. भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग. मंदिर की घंटियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई, जैसे मीन्स खुशी का माहौल. एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स. उसको लगा जैसे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ उसके मन में आ गई. हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. पूरा मन उसका एक नई उमंग से भर गया था. Now, why do Bholi's parents accept Bishambar's marriage proposal and why does marriage not take place? Let us see. Thus the years passed. अब कुछ टाइम बीत गया. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. एक कॉटन की गिनिंग मिल भी वहाँ आ गई, सिनेमा भी आ गया उस गाँव में. द मेल ट्रेन बिगान टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. अब वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे गाड़ी भी रुकती थी. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. कहते क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? यस सर्टनली. प्रपोजल मीन्स यहाँ पर है मैरिज प्रपोजल. यस सर्टनली हिज वाइफ सेड. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. कह रहे कि ये तो बड़ा अच्छा दूल्हा उसको मिला है. उसके पास एक बिग शॉप है, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. बैंक बैलेंस भी है. मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी. और वो दहेज भी उसको नहीं चाहिए. दैट इज़ राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम. लेकिन वो जवान नहीं है, बूढ़ा है. कह रहे मेरी उम्र का है, मीन्स भोली के फादर की उम्र का है. And he also limps. Limps means lame. थोड़ा लंगड़ा भी है. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और कह रही कि उसकी फर्स्ट वाइफ से बच्चे भी हैं जो बड़े हो चुके हैं.
So what does it matter? His wife replied. 45 or 50, it's no great age for a man. कहते 45-50 साल तो कोई आदमी के लिए बड़ी एज नहीं होती. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. कहते भोली सी और कोई शादी भी नहीं करेगा. हम इतना खुश नसीब हैं कि वो दूसरे गांव से है. वो भोली के चेहरे के पॉक मार्क्स के बारे में नहीं जानता. ठीक है, नहीं, और कौन उससे शादी करेगा? ना तो उसको तो अकल है, ना वो सुंदर है, कोई भी तो उससे शादी नहीं करेगा. यस बट आई वंडर वट भोली विल से. लेकिन कह रहे नहीं, भोली को बुरा लगेगा. वट विल दैट विटलेस वन से? शी इज़ लाइक अ डम्ब काउ. देखो उसकी मदर ये कह रही है, कह रहे अरे बेवकूफ़, वो तो उसमें तो इतनी अकल ही नहीं है कि वो कुछ बोलेगी. मे बी यू आर राइट मटड रामलाल. रामलाल ने कहा कि हाँ, शायद तुम सही हो. In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. भोली ने ये सारी बातें सुन ली and she was just अभी वो चुप थी. बिशंबर नाथ was a well-to-do grocer. एक अच्छा खासा शॉप का मालिक था. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. बहुत बड़ी ग्रैंड बारात लेकर आया था. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स. और एक बड़े शानदार घोड़े पे, सजे हुए घोड़े पे आया. रामलाल वॉज ओवर जॉय टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर. इतनी शानदार बारात को देखकर रामलाल तो बहुत खुश हुआ. ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग. कि इतनी अच्छी शादी होगी उसकी फोर्थ डॉटर की. भोलीज इवन एल्डर सिस्टर्स भी उससे एनवियस फील कर रही थी, मीन्स उससे जेलस फील कर रही थी ऑफ हर लक. बट she lucky? No, she was not lucky. She was going to be married to a man who is old and lame. When the auspicious moment came, अब वो घड़ी आ गई जब उनके फेरे होने थे. The priest said, "Bring the bride." दुल्हन को लाया जाए. भोली, clad in red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. पवित्र अग्नि के सामने उसको एक रेड कलर की साड़ी में लाया गया. Garland the bride. One of the friends prompted Bishambar Nath. कहते बरमाला डालो. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from bride's face. अब गांव में कई बार कुछ औरतें बड़ी शरारती होती हैं. उन्होंने क्या किया, उसका घूंघट खींच दिया. वेल मीन्स घूंघट. Bishambar took a quick glance. उसने उसकी शक्ल देख ली. The garland remained poised in his hands. अब उसने वरमाला नहीं डाली. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस. और उसने दोबारा से इस भोली ने घूंघट उड़ा लिया. हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस. कह रहे मैंने तो इसकी शक्ल देखी है, तुमने देखी? इसके तो चेहरे पे पॉक मार्क्स हैं. सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर. कह रहे तो क्या हुआ, तुम कौन से जवान हो, बूढ़े हो, लंगड़े हो, अब ऐसी लड़की ही मिलेगी तुम्हें. मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़. लेकिन कहते अच्छा, लेकिन अब मैं 5,000 रुपये लूँगा तब इससे शादी करूँगा. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन. टर्बन मीन्स पगड़ी. अपनी पगड़ी को इज्जत माना जाता है अपनी, तो उसने अपनी इज्जत, अपना ऑनर बिशंबर के पैरों में रख दिया और कहा डू नॉट ह्यूमिलेट. कह रहे मेरी बेइज्जती हो जाएगी. टेक 2,000 रुपीज़. 2,000 रुपये ले लो और शादी कर लो. नो 5,000 और वी विल गो बैक. कीप योर डॉटर. बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़. इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. कह रहे मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी अगर आप वापस चले गए. देन आउट विथ 5,000. कहते फिर 5,000 रुपये ले आओ. टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. रोता हुआ रामलाल ही वेंट इन, ओपन द सेफ. उसने अपनी सेफ तिजोरी खोली और नोट्स को काउंट किया और फिर लाकर 5,000 का बंडल ही प्लेस दैट बंडल इन ब्राइड ग्रूम्स फीट. उसके पैरों पे रख दिया. ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल. ट्रिम्फेंट मतलब एक जीत की स्माइल उसके आ गई. एंड ही गैम्बल्ड एंड वन. गिव मी द गार्लैंड इन नाउस. कहते अरे वाह, मैंने तो एक दाव लगाया और मैं जीत गया. Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. पहले तो वो नीचे देख रही थी. एक बार फिर से सुलेखा यानी भोली के चेहरे से घूंघट हट गया. She was looking up और वो बिल्कुल स्ट्रेट देख रही थी. Looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. ना तो गुस्सा था ना नफरत, एक घृणा थी. Contempt होता है घृणा. देखो गुस्सा हम नफ़रत अच्छी सुंदर चीज़ से भी कर लेते हैं ना, लेकिन घृणा हम हमेशा गंदी और बुरी चीज़ से करते हैं. बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड ब्राइड्स नेक. उसने फिर से उसको बरमाला डालने की कोशिश की, बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट विद द स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर.
वो गार्लैंड उठा के उसने फेंका अग्नि में। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट भी उठा के फेंक दिया। पिताजी, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. पिताजी, उसने बिना हकलाए बोला। सब उसके रिश्तेदार, भाई बहन हैरान हो गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। कह रहे अपने पैसे उठा लीजिए, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। रामलाल भी हैरान हो गया। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस। कहती बड़ी बेशर्म लड़की है, इतनी बदसूरत है, फिर इतनी बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली? हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत। कह रहे हमारी इज्जत रख लो भोली, तुम तो अपनी फैमिली को बेइज्जत करने पे तुली हो। फॉर द सेक ऑफ इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। कह रहे पिताजी, आपकी इज्जत के लिए ही तो मैं बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल काउवर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन कहते मैं इतना कमीना, इतना लालची और इतना गिरा हुआ इंसान को मैं अपना हस्बैंड नहीं मान सकती। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Right? कह रहे कि हमने तो सोचा था कि ये गाय की तरह बिल्कुल चुपचाप सहने वाली लड़की है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, और फिर वो अपनी उस आंटी की तरफ मुड़ी जिसने ये बात कही। येस आंटी, यू आर राइट। कह रहे आप सही बोल रही। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्ब ड्रिवन काउ। कहते आप सबने यही सोचा कि मैं तो बेजुबान जानवर हूँ। दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रिएचर। कह रहे इसीलिए तुम इस बेदर्द इंसान के साथ मेरी शादी कर देना चाहते हो। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब ये डम्ब काउ, ये बेजुबान गाय बोल सकती है विदाउट स्टैमरिंग। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? कह रहे कुछ और सुनना चाहती हो? Vishambhanath the grocer started to go back with his party, and the confused bandsman thought it was the end of the ceremony and stuck up with the closing song. वो एक क्लोजिंग सॉन्ग बजाते हुए उस बैंड पार्टी के साथ वापस चला गया। Now रामलाल stood rooted to the ground. रामलाल तो वहाँ जैसे जड़ बन गया। His heart bowed low with the weight of grief and shame. अपने आप की बदनामी, बेइज्जती समझी उसने। The flames of the sacred fire also died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" कहते लेकिन तुम्हारा क्या होगा बेटा? अब तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तो हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे? एंड सुलेखा, अगेन उसका सुलेखा नाम दोबारा आ गया, सेड इन द वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी। उसने एक आराम से कहा, डोंट यू वरी पिताजी। कह रहे आप घबरा क्यों रहे हैं? इन योर ओल्ड एज, आप बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो जाओगे, आई विल सर्व यू एंड मदर। मैं आपकी और मदर की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा है। इज़ इट देन राइट मैम? और फिर उसने अपनी मैम की तरफ देखा कि क्या मैं सही हूँ मैम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। और टीचर भी एक कॉर्नर में आई हुई थी वो शादी पे और देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। कहते बिल्कुल भोली, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। और उसकी टीचर के चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन थी। फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। बिल्कुल ऐसी स्माइल थी, ऐसी सेटिस्फेक्शन थी जो एक आर्टिस्ट जब अपना मास्टरपीस को कंटेम्पलेट मीन्स टू कंप्लीट, जब वो एक मास्टरपीस बनाता है ना अपना, तो उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है वैसी स्माइल थी। एक संतोष, एक सब्र, एक खुशी जो उसको मिली वो थी कि वो किस तरह से बहुत खुशी से शी वॉज रियली फीलिंग वेरी हैप्पी। एक मास्टरपीस बनाकर जैसे एक आर्टिस्ट फील करता है। सो भोली वॉज अ मास्टरपीस, उसकी टीचर की मास्टरपीस थी। तो शुरू में हमें एक क्वेश्चन आया था कि क्या भोली अपने टीचर की एक्सपेक्टेशंस तक पहुंच पाई थी? यस वो पहुंच पाई थी। सो this is the whole chapter, and I think I have tried my best to explain each and every word of this chapter. If you have any queries, students, you can post your queries in the comment box of my YouTube channel. And if you really feel it helpful, please students, please my viewers, it is my request, please like, share and subscribe my channel. Thank you.